भव्य पब्लिकेशन इंग्लिश ग्रामर क्लास 8। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर एंड टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक. Take out the very first chapter. The first chapter name is determiners. So first of all, let's know about what is determiners. Determiners are words that are used before nouns to determine or modify them or fix their meaning. They do not describe a noun, they determine or point it out. डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स है जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं ताकि उसे डिटरमाइन कर सके या उसको मॉडिफाई कर सके या उसको फिक्स कर सके, उसकी जो मीनिंग है उसे फिक्स कर सके. ओके, ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते पर ये डिटरमाइन करते, पॉइंट आउट करते हैं. ओके, नाउ लुक एट दीज फ्रेजेस. द बेस्ट गर्ल, माई सिस्टर, दैट शर्ट, every student, some mistake. The words printed in magenta color are determiners. जो words आपने magenta color या pink color में देखा वो क्या आपके determiners है, जैसे कि the, my, that, every, some. Okay, जो कि noun के आगे आते हैं उसको point out करते हैं. Now the next thing is look at these two phrases. अब यहाँ पर दो और phrases दे रखे हैं, difficult problem, that problem. Okay, in the first phrase the word difficult describes the problem. It tells us what kind of problem we are talking about. So it is an adjective. First phrase में हमने देखा difficult problem. ये बता रहा है कि कौन से तरीके की problem है, difficult है वो. Okay, तो difficult आपका क्या हो गया, ये adjective हो गया. Okay, in the second phrase the word that does not describe the problem. It determines or specifies the problem. It points out a particular problem and says that problem. So it is a determiner. Basically, it is not pointing out. Like मतलब कौन से तरीके की problem है ये नहीं बता रहा है, बस वो point out कर रहा है. हमने फर्स्ट फ्रेज में देखा कि वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा था पर सेकंड फ्रेज में वो पॉइंट आउट कर रहा है. ओके, तो वो क्या हो गया, हमारा जो वर्ड दैट है ये हमारा डिटरमाइनर है. ओके, वो डिटरमाइन कर रहा है. Now let's know about kinds of determiners. Determiners can be divided into the following kind. Determiners जो है ये following kinds में divided होते हैं. First one आपका है articles. Articles जैसे कि आपको पता ही है a and the. Okay, फिर है आपका demonstratives. Demonstrative जैसे कि this, that, these, those, etc. Now next one is possessive. Possessive जैसे कि my, our, your, his, her, its, their, etc. Next one is distributive. Distributive जैसे कि either, neither, each, every. Next one is quantifiers. Quantifiers जैसे कि some, any, much, many, several, etc. Next one is interrogatives. Interrogative जैसे कि what, which, whose, etc. तो चलिए हर एक के बारे में डिटेल में जानते हैं. So the first one is articles, a, and the. There are three articles in English, a, and the. Of these, a and an are two forms of a single article called indefinite article. अब इनमें से a और and जो है ये दो forms हैं, ठीक है, एक single article के, जिसको हम indefinite article बोलते हैं क्योंकि ये define नहीं करते अच्छे से. While the is the definite article, जबकि the जो है वो definite article है. An article is placed before a noun. Article जो है वो noun के पहले place होता है. If there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. अगर adjective आ गया noun से पहले तो article adjective से पहले आएगा. ओके, जैसे कि आपको दे रखा है एग्जाम्पल a student. ओके, तो student आपका noun है तो noun से पहले आपका article आ जाएगा. ऐसे ही a hard working student. hard working आपका adjective है तो adjective से पहले आपका आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वॉल. वॉल से पहले आपका द आ गया, वो डेफिनाइट फॉर्म में हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज द हाई वॉल. वॉल कैसी है, हाई है. हाई आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल द आ गया. ओके, now before going further there is a note. We can never use a singular countable noun alone without a and the, my, some, etc. हम कभी भी एक singular countable noun जो है उसको अकेले यूज नहीं कर सकते हैं बिना किसके, बिना a and the, my, some के. ठीक है, like that is without a determiner. Okay, a is used when the sound following it is a consonant sound. जैसे कि आपको पता ही है कि जो consonant sound जब आता है तो हम a का यूज करते हैं. For example, a nib, a useful thing, etc. Okay. अब आप सोच रहे होंगे यूजफुल थिंग में तो यू है वो तो वॉवल होता है, पर नहीं, उसका साउंड वाई वाला आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है, तो उसके आगे हम आ लगाएंगे. ओके, नाउ
द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। अब आके यूजेस हमें फॉलोइंग केसेस में बता रही थी, जैसे कि सबसे पहले हमें बताया है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है जब वो पहली बार हम उसे मेंशन कर रहे हो तब, ठीक है, जैसे कि आई सॉ अ लायन इन द जू टुडे। ओके, next one is before a singular countable noun which is an example of a class of things। एक singular countable noun के आगे लगता है जो कि example है किसका, class of things का। for example a child need care। okay, so that means all children need care। okay, ये class of things के बारे में बता रहा है ना child। okay, next one is to express quantity। quantity express करने के लिए भी हम आकर यूज करते हैं, जैसे कि a lot of, a dozen, a pair of, a number of। okay, next one is before units of price, speed, ratio, weight etc। जब यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट होता है तो उसके आगे भी हम आकर यूज करते हैं, जैसे कि दिस कार गिव्स 15 किलोमीटर्स अ लीटर, शुगर इज ₹30 अ किलो। ओके, नेक्स्ट वन बिफोर सर्टेन नंबर्स, कुछ सर्टेन नंबर्स के आगे भी आकर यूज करते हैं, जैसे 100, अ बिलियन। ओके, नेक्स्ट वन इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उनके आगे भी हम आकर यूज करते हैं, जैसे कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ओके, next one in certain exclamatory expressions like what a beautiful shot, okay, what a pity। okay, तो इनके आगे हम आ का यूज करते हैं जब कोई exclamatory expression होता है उनके आगे। okay, now let's talk about an performs the same function as a, but an is used with before singular countable noun which begin with the vowel sound, that is a, e, I, o, u। okay, an is also the article, the indefinite article। okay, but it is used in the vowel sound one। okay, now before going further there is a note, the initial sound is important, not the spelling। initial sound important hota hai, spelling nahi। okay, now the point is the following words begin with vowel letters but not with vowel sound। कुछ ऐसे following letters जो vowel letters से शुरू होते हैं पर vowel sound नहीं होता, ठीक है, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, हम आ लगाएंगे, जैसे कि they therefore take a before them। ओके, a यूनिवर्सिटी, इसमें वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। ओके, अ यूरोपियन, ओके, इसमें भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आ ही लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the following words begin with consonant letters but with vowel sound, they therefore take and before them। so कुछ ऐसे words है जिसमें vowel का sound आता है पर वो शुरू होते हैं किससे, consonant से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन आर, एच से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है पर आ रहा है इसमें vowel का साउंड है तो एन लगेगा इसके आगे। ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, एन एम्प्टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओमिशन ऑफ अ और एन। और एन इज नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस है इसमें और एन का यूज नहीं हम करते हैं, जैसे कि बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले हम कभी भी और एन का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि अ बैग, बैग्स, हम ऐसे नहीं करेंगे। ओके, सम बैग्स, मेनी बैग्स, 5 बैग्स ऐसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेट्रा, कभी भी कोई अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके आगे हम आ और एन का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आ लगेज, सम, इसकी जगह हम सम लगेज, पीस ऑफ लगेज कर सकते हैं, अ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड कर सकते हैं, ग्रेन ऑफ गोल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बिफोर नेम्स ऑफ मील। नेम्स ऑफ मील जो इनके आगे भी हम आ का यूज नहीं करते, जैसे डिनर स्टार्ट्स एट 8। ओके, हाउएवर नेम ऑफ सम स्पेशल मील टेक और एन, पर कुछ ऐसे स्पेशल मील होते हैं जिनके आगे हम और एन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ लंच इन प्रेसिडेंट्स ऑनर। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन के आगे भी हम और एन का यूज नहीं करते। नो आर्टिकल विल बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि टुडे इज अ क्रिसमस हॉलीडे, दिस इज रॉन्ग। टुडे इज क्रिसमस हॉलीडे, ये राइट सेंटेंस है क्योंकि क्रिसमस के आगे हम आ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन सर्टेन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल फ्रेजेस। कुछ स्पेशल फ्रेजेस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके आगे भी हम आ का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बाय ट्रेन, ऑन फुट, इन बेड, गो टू स्कूल, एट लंच, गो होम, ठीक है, इनके आगे हम और एन और द का यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विद द नेम ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के नाम के साथ भी हम आ का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मलेरिया, टाइफॉइड, बट द मीजल्स, हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें द का यूज करना होता है, द आर्टिकल का, जैसे द मीजल्स, द मम्स। ओके, नेक्स्ट वन विद द नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन। डेज, मंथ्स एंड सीजन के आगे भी हम और एंड का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आवर स्कूल इज क्लोज फॉर विंटर वेकेशन दिसंबर, इन दिसंबर नहीं बोलेंगे हम। ओके, संडे इज अ हॉलीडे। ओके, स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग, दिस इज करेक्ट वन। Now next is with words like father, mother, uncle, because in a given situation they are just like a proper noun। वर्ड जैसे कि फादर, मदर, अंकल हो गए तो उनके आगे भी हम आगे यूज नहीं करेंगे जब वो प्रॉपर नाउन के फॉर्म में है। ओके, जैसे कि मदर हैज जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, फादर हैज नॉट बीन वेल सिंस यस्टरडे। ओके, now let's talk about the।
The called definite article, it can be used before singular nouns, plural nouns and uncountable noun. The जो है वो definite article है और वो हम singular noun के आगे भी use कर सकते हैं, plural noun के आगे भी और uncountable noun के आगे भी. The is used in the following cases. कुछ ऐसे cases है जिसमें हम the का use करते हैं, जैसे कि first one, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं सिर्फ एक ही है, इकलौते ही है, तो उनके आगे द का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द सन, द इक्वेटर, द अर्थ, द यूनिवर्स. ओके, नेक्स्ट इज बिफोर अ नाउन मेड डेफिनाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकंड टाइम. मतलब तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आगे हमने पहले तो आ का यूज करा, ठीक है, पर बाद में जो सेंटेंस है उसके आगे हम क्या करेंगे, फिर वो डेफिनाइट फॉर्म में बन जाता है, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल एंड अ बॉय इन द पार्क. The girl was singing and the boy looked angry. तो अब वो पर्टिकुलर हो गए, डेफिनाइट फॉर्म में हो गए, तो हम दा का यूज करेंगे. नाउ the next point, before a noun made definite by the addition of a phrase or clause. एक noun के आगे जब वो definite बन जाता है by the addition of phrase और clause की वजह से, जैसे कि the boy in the museum. Okay, next one, before a noun representing only one particular thing by reason of locality. मतलब कि एक noun के आगे जो कि एक ही particular thing के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि please pass the table salt. Okay, तो उसी particular thing पे वो इशारा करके बोल रहे हैं. Okay, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, द ग्रेट सीजर. ओके, एक प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द का यूज करेंगे जो कि क्वालिफाइड एक एडजेक्टिव के साथ, जैसे कि द ग्रेट सीजर. सीजर के आगे ग्रेट लगा है यानी कि वो एडजेक्टिव है और उसके आगे हम द का यूज करेंगे जो कि एक आर्टिकल है डेफिनाइट फॉर्म में. नाउ द नेक्स्ट वन इज बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट एंड सेकंड एक्सेट्रा यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. ओके, सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं. जैसे कि आपका जो एडजेक्टिव है उसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव लग जाता है और फिर हम उसके आगे द का यूज करते हैं, जैसे कि द सेकेंड बुक. ओके, उसके बाद है द फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट आंसर. तो आप देख सकते हो सेकेंड, फर्स्ट, बेस्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया, ऑर्डिनल फॉर्म में भी है, ये सुपरलेटिव फॉर्म में भी है. ओके, एंड उसके आगे हम द का यूज कर रहे हैं. Now next one, before a singular noun to represent a class of animals or things. एक singular noun के आगे जो class of animals or things को represent कर रहा है, जैसे कि the elephant is the largest land animal. Okay, जो elephant है वो land animal को represent कर रहा है. Okay, next one is before an adjective to represent a class of person. एक adjective के आगे जो class of person को represent करता है, for example the rich are glamorous, ये class को represent कर रहा है. Okay, इसके आगे द का use होगा. Now next one, before name of seas, river, group of lands, chain of mountains, plural names of countries, deserts and regions. तो कुछ स्पेशल नाम जो होते हैं रिवर के, सीज के, आइलैंड के, लैंड के, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, द एल्प्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग नाउन. अब वो नाम जिसमें नाउन वगैरह आ रहा है तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट अ फैमिली. एक सरनेम के आगे भी जो कि प्लूरल फॉर्म में है, जो फैमिली को डिनोट करे, उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल द गुप्तास, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता एंड चिल्ड्रन, उसमें ये सब आ जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बिफोर नेम ऑफ बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमाज एक्सेट्रा. तो बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट के आगे भी द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द व्हाइट हाउस, द ताजमहल एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. न्यूज़पेपर, मैगजीन के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस, एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द क्रिश्चियंस, द स्पेनिश. ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स जो होती है उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द कुरान एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन, बिफोर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द यूनेस्को. ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन के आगे भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के आगे हम द का यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर डेट्स, डेट्स के आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि शी वाज बोर्न ऑन द 1st of April 2009. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओमिशन ऑफ द. अब हम द का यूज कहां पर नहीं करेंगे. द इज नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट वन, बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मंडे, फेब्रुअरी, कानपुर, अभिषेक शर्मा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल चैरिटी बिगिंस एट होम, हम इसमें ये नहीं बोलेंगे द चैरिटी बिगिंस एट होम, इट इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल वाटर इज प्रीशियस, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, द वाटर इज प्रीशियस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ मील, मील के नाम के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. इसको कभी भी ऐसे नहीं बोलना आई हैड सम द ब्रेड एंड द बटर फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, इट इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी
बॉडी एंड क्लोथिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी और क्लोथिंग के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ओपन योर माउथ. ओके, नेक्स्ट वन बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. ओके, नेक्स्ट वन बिफोर वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, उनके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स. गेम्स के आगे भी गेम्स के जो नाम होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज बैडमिंटन, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे शी प्लेज द बैडमिंटन. ओके, नेक्स्ट वन बिफोर हॉबीज. हॉबीज के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक द पेंटिंग, ये रॉन्ग होगा. आई लाइक पेंटिंग ये सही है. Okay, now before going further, there is a note. Nature means the spirit of creating and motivating the world of plants and animals. It is used with the. Okay, so nature का मतलब क्या होता है? nature का मतलब वो spirit जो create कर रही है, motivate कर रही है किसको? world of plants and animals को. Okay, और वो हमेशा हम किसके साथ use करते हैं? the के साथ, यानी कि the article उसमें use होता है. Okay, now next point in this one is if you destroy nature it will destroy you. Okay, bed, church, court, hospital, prison, school, college, sea, office, work, university, do not take the before them. इन सब के आगे द का यूज नहीं होता है. They are visited or used for the primary purpose for which they are made. Okay, I went to temple to pray. Okay, I went to the church to see the mosaics. Okay, तो church के आगे हमने द का यूज करा है यहाँ पर. Next one is when home is used alone or placed directly after a verb of motion, the is not used. तो जब भी हम home को एक ही बार मतलब अकेला ही यूज करें एक सेंटेंस में, या फिर हम डायरेक्टली वर्ब के बाद प्लेस कर रहे हैं तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि he is at home. Okay, they went home. तो यहाँ पर आप देख सकते हो द का यूज नहीं होगा. Okay, now the next point is demonstratives. This, that, these, those. This का प्लूरल क्या होता है? these होता है. and that प्लूरल is those are called demonstrative. demonstrate करते हैं ये, मतलब ये बता रहे हैं कि क्या चीज. okay, they can be used both as an adjective and as pronoun. दोनों फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव में भी प्रोनाउन फॉर्म में भी. दे पॉइंट टू समबडी, सम पीपल, ये किसी को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, और समथिंग है किसी चीज पे पॉइंट आउट करते हैं. दे टेल अस व्हिच वन, लाइक कौन सा. ठीक है, जैसे कि दिस इज माई बुक. अब वो बुक पास रखी गई है, ठीक है, और एक ही है तो दिस इज माई बुक. ओके, ये प्रोनाउन फॉर्म में हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज दीज आर हर एक्सक्यूजेस. दीज आर हर एक्सक्यूजेस. आप देख सकते हो यहाँ पर जो चीज है वो बहुत काफी ज्यादा दूर है. वो जो एक्सक्यूजेस है वो काफी ज्यादा दूर है, बहुत सारे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए दीज का यूज किया गया. और दीज के बाद आप देख रहे हो आर का यूज किया गया. आर आपका क्या है? आर आपका यहाँ पर है वर्ब. ओके, तो यहाँ पर हम दीज का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, प्रोनाउन हो गया. ये प्रोनाउन हो गया है. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट नॉइज. अब नॉइज, नॉइज आया है यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म आया है. ओके, तो उसके आगे हम दैट का यूज करते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट वन, दिस बैग इज माइन. दिस बैग इज माइन, तो ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट क्लोज बाय. मतलब जो चीजें हमारे पास होती है उसके हम दिस और दीज का यूज करते हैं. दिस इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन. दिस जो है वो सिंगुलर नाउन में यूज होता है, और जो दीज है दीज बिफोर प्लूरल नाउन. दीज प्लूरल नाउन से में यूज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड. दीज फ्लावर्स आर फॉर यू. ओके, दिस बुक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड. ओके, मतलब कि ये जो बुक है ये पूरी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है. नेक्स्ट वन, दीज फ्लावर्स आर फॉर यू. ओके, तो बहुत सारे फ्लावर्स से दीज का यूज किया गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज that and those. That and those refer to persons or objects at a distance. मतलब जो थोड़ा दूरी में है. Okay, that is used before singular noun. Singular noun के आगे that का यूज होता है. And those before plural noun. Plural noun के आगे those का यूज होता है. For example, that car belongs to my uncle. Those cars are for sale. Okay, next one, this and that can be used before the uncountable also. This and that को हम uncountable के आगे भी यूज कर सकते हैं. Okay, for example, that rose bush bears beautiful white roses. Okay, this food is not fit to be taken. Okay, next one, that plural those is used to avoid the repetition of the preceding noun. Preceding noun का repetition ना हो तो हम that का use करते हैं. For example, my purse is better than that of my friend. Okay, तो हम बार बार पर्स तो नहीं बोलेंगे, तो हम उसकी जगह that का use कर रहे हैं. Next one, our soldiers are better equipped than those of Pakistan. Okay, now the next point is possessives. A possessive is a word that shows that a certain thing or person belongs to somebody or something.
मतलब कोई ऐसी चीज है जो किसी पर्सन को बिलोंग कर रही है। ओके, द वर्ड्स लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, दे आर पोजेसिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं बिकॉज दे आर प्लेस बिफोर नाउन, क्योंकि नाउन से पहले लगता है, एंड एक्ट एज एडजेक्टिव और क्वालिटी वर्ड्स, और ये एक्ट करता है एडजेक्टिव के फॉर्म में, क्वालिटी वर्ड्स के फॉर्म में। द पोजेसिव ऑलवेज रेफर टू द पोजेसर्स। पोजेसिव जो है वो हमेशा पोजेसर को रेफर करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट डू माई ड्यूटी। ओके, माई ड्यूटी, तो यहाँ पर पोजेसिव फॉर्म हो गया है। we must do our duty. Okay, you must do your duty. Next one, they must do their duty. Okay, he must do his duty. Okay, she must do her duty. Okay, it, institution or department must do its duty. Okay, तो it का its हो गया इधर। Okay, now here it is saying do not use any apostrophe s with these possessive adjective. Possessive adjective के साथ हम apostrophe s का use नहीं करेंगे। There is only exception in the pronoun one. सिर्फ pronoun के साथ ही exception case है which takes an apostrophe s, जो apostrophe s को लेता है to form its possessive adjective, ताकि इसका possessive adjective form हो सके। Okay, now the next point is carefully study the following pair of sentences. यहाँ पर आपको कुछ following pair of sentences दे रखे हैं, जैसे कि this is my pen, this pen is mine, this is his book, this book is his, it's your mistake, this mistake is yours, these are her flowers, these flowers are hers. Okay, तो आप देख सकते हैं कैसे सेंटेंसेस जो है वो एकदम चेंज हो गए, मतलब मीनिंग तो उनका सेम ही है, ठीक है, बस यहाँ पर वर्ड्स जो है वो थोड़ा चेंज हो गए हैं। जैसे कि द वर्ड्स माइन, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। दे कन्वे द सेम मीनिंग एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सेम मीनिंग ही बता रहे हैं जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव बता रहे थे। हाउएवर पोजेसिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन, पर पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि आपको पता है कि वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। दे रेफर टू द पोजेसिव प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, पर जबकि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये नाउन के बाद लगते हैं, जैसे कि दिस पेन इज माइन। ओके, तो ये नाउन के बाद लग रहे हैं। ओके, तो therefore sentences like the one below will be unacceptable। जैसे कि एक सेंटेंस आपको दिया दिस इज माइन बुक, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? नाउन के बाद लगना होना चाहिए जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ओके, नाउ द अबव सेंटेंसेस कैन बी करेक्ट इन द फॉलोइंग टू वेज। जो ऊपर का सेंटेंस है वो दो तरीके से करेक्ट हो सकता है, जैसे कि दिस इज माई बुक। ओके, तो माई बुक यहाँ पर ये एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया, दिस बुक इज माइन, हाँ ये आपका प्रोनाउन फॉर्म में हो गया। ओके, नाउ स्टडी द टेबल केयरफुली। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन आपको दिया है, सब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव दिया है आपको, पोजेसिव प्रोनाउन दिया है। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट में आप देख सकते हो आई है, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव में आपका माई है, पोजेसिव प्रोनाउन में माइन, यू, योर, योर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। यहाँ पर हम सेम मतलब वही यूज करेंगे, सेम वन पोजेसिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट वन, वी, आर, अर्स, आर्स, दे, देयर, देयर्स। ओके, now before moving further there is a note, its is used only as a possessive adjective। its जो है वो सिर्फ possessive adjective में ही यूज करते हैं, हम possessive pronoun में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आपने देखा वहां ब्लैंक था। ओके, possessives can be used both before singular and plural noun। possessive जो है वो singular और plural noun दोनों के आगे हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि my car, my cars, your book, your books। ओके, next one is they can be used before the countable। ये countable के आगे और as well as uncountable के आगे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि our minister, our ministers, our duty। Okay, now the next point is distributives either, neither, each, every। so हम हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव को जानते हैं। फर्स्ट वन है आपका either। either has two meanings। either के दो मीनिंग होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है any of the two different persons or things, मतलब कि कोई भी दो डिफरेंट पर्सन या फिर चीज। ओके, on either side is a narrow lane। ओके, any of the two side, किसी भी दो साइड में। ओके, either book can serve my purpose equally well, मतलब कोई सी भी बुक जो है वो पर्पस सर्व कर रही है। ओके, any of the two books। now next one, the both tall multi-story buildings have come up on either side of the road। ओके, मतलब कि on both side of the road। ओके, now the next point is neither। neither is the opposite of either। neither जो है वो opposite है किसका? either का। it means not the one nor the other। इसका मतलब है ना तो एक जो एक थिंग है पर्टिकुलर थिंग, ना ही दूसरी वन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट टू टीवीज बट नीदर वर्क्स प्रॉपरली, मतलब दोनों में से कोई भी एक अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट वन, यू शुड टेक नीदर साइड, किसी का भी साइड नहीं लेना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच, एवरी। फर्स्ट थिंग, वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। मतलब कि हम ईच का यूज करते हैं जब हम सोच रहे हो चीजों के बारे में सेपरेटली, यानी कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि ईच बॉय वॉज गिवन अ चॉकलेट, मतलब हर एक लड़की को चॉकलेट मिला। ओके,
नेक्स्ट वन, टॉक टू ईच चाइल्ड, मतलब हर एक बच्चे से बात करना. नाउ द नेक्स्ट इज वी यूज एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज अ ग्रुप. हम एवरी का यूज करते हैं जब हम एक ग्रुप के फॉर्म में सोच रहे हो. ओके, विदाउट एक्सेप्शन. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी. ओके, now the next thing is we use each for a small number, preferably 2, or the number in the group should at least be limited or definite form. Okay, तो basically हम each का use करते हैं एक छोटे number के form में. Okay, preferably 2 होना चाहिए या फिर number in the group should at least be limited, मतलब वो जो number है वो limited form में होना चाहिए, definite form में होना चाहिए. Every is used when the number is large or indefinite. Every का हम use करते हैं जब number बहुत ज्यादा large और indefinite form में हो. For example, each side of the square has the same length. Okay, तो ये हर एक side जो है square का वो same length का है, तो मतलब ये 4 उसके पे ही है, fixed है. Okay, definite form में. Next one, every Indian must be proud of their country, यानी कि बहुत सभी जो Indian citizens हैं उनके बारे में बात कर रहा है. Okay. Now the next topic is quantifiers, some, any, much, many, several, etc. So let's know about these quantifiers. First one, study these sentences carefully. Many jobs need to be done immediately. Some idiot keeps calling me on my cell phone. Are there any stamps in the door? Are there any stamps in the drawer? Okay, I had to face a lot of trouble to reach your house. He was not left with much choice. She takes no interest in her household work. The words printed in bold letters are quantifiers. ये जो words printed थे bold letter में क्या थे? Quantifiers थे. Okay. Now what is this quantifiers? Quantifiers tell us something about number or quantity. Quantifiers हमें number और quantity के बारे में बताता है. Quantifiers like many and several suggest number. Many और several जो है वो number को suggest करते हैं. उसके बाद आपको next point दे रखा है, they are used with countable. ये countable के साथ हम use करते हैं. For example, many people have seen this movie. Okay, मतलब सभी ज्यादातर लोगों ने इस movie को देखा है. ठीक है, next one, I have seen her wearing this dress several times. Okay, others like much and a little suggest quantity. Much और a little जो है वो quantity को suggest करता है. They are used with the uncountable. ये uncountable के साथ हम use करते हैं. For example, much milk, milk क्या आपका uncountable है. A little rice ये भी आपका uncountable है. Okay, some of them like some and any can be used with both countable and uncountable. Some और any जो है वो countable और uncountable दोनों के साथ हम use कर सकते हैं. For example, some magazine, some coffee, any trousers, any bread. Okay. Now the next thing is some and any. Some and any mean a certain number of quantity. एक certain number of quantity को represent करता है. They can be used with plural और uncountable noun. ये plural और uncountable noun के साथ हम use कर सकते हैं. Okay, इसके example आपको दे रखे हैं जैसे कि some chocolate, some money, any news, any new dress. Okay, now the next point is some is used with affirmative verb. Some जो है वो affirmative verb के साथ use करते हैं, जैसे कि she bought some butter. Okay, ये affirmative verb हो गया. Next one, I need some paper to write on. Okay. Now the next point is any is normally used with negative verb. Any को हम negative verb के लिए use करते हैं, जैसे कि I haven't got any money. Okay, यानी कि कोई भी money उसे नहीं मिला है तो ये negative form में use हो गया. Next one, the employee haven't done any work since morning. Okay. Now the next point is both some and any can be used in interrogative sentences. Sentences में भी हम some और any का use करते हैं. If we expect an answer in yes, अगर हम answer को expect कर रहे हैं yes में, okay, we use some, हम some का use करेंगे. If we expect answer in no, अगर हम answer expect करें no में तो हम किसका use करेंगे? any का use करेंगे. Okay, क्योंकि any तो आपको पता ही है negative form में हम use करते हैं तो उसमें no ही होगा. Okay, for example, did some of you hear the bell? तो इसका मतलब answer हम क्या expect कर रहे हैं? yes का ही expect कर रहे हैं. Okay, next one, do you need any help? Okay. Now the next point is sometimes any can also be used to mean it does not matter which one or who or when. Okay, इसमें ये नहीं मैटर करता कि कौन सा ओके और कौन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट कैन गेट टू द टॉप विथ हार्ड वर्क. अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि वही पर्टिकुलर स्टूडेंट. ओके, कोई भी स्टूडेंट. नेक्स्ट वन, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन कम एनी टाइम. ओके, कितने भी टाइम में तुम आ सकते हो, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो. Now the next point is much and many. Both much and many convey the idea a lot of. Okay, a lot of. Much is generally used before the uncountable. Uncountable में uncountable से पहले हम much का use करते हैं. It means a large quantity of it takes a singular verb. Okay, many is used before the countable in the plural number. Okay, countable के आगे use होता है ये. It means a large number of it and it takes a plural verb. ये plural verb लेता है जबकि much जो है वो singular verb लेता है. For example, much labor. Okay, much joy. Next one, many artists, many children. Okay.
Now, before going further, there is a note. The expression many are, which means the same as many, is followed by a singular countable noun and take a singular verb. Okay, तो basically जो many are है वो same ही है, उसका meaning same है जैसे many का होता है, ये भी follow होता है by a singular countable noun and takes a singular verb. Okay, जैसे कि many a job needs to be done immediately, तो आप देख सकते हो many a job. Okay, नेक्स्ट वन, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ मच एंड मेनी आर मोर एंड मोस्ट. और जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म होता है मच और मेनी का, वो मोर और मोस्ट होता है. जैसे आपको यहाँ पर दिया है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. ओके, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल डिनोट क्वांटिटी एंड आर यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं. ओके, whereas few, a few, the few denote number and are used before the countable in the plural form. ये countable के आगे use होता है plural form में, few, a few, the few. Okay, so let's talk about the first one, that is little. Not much, hardly any. Little का मतलब ना ज्यादा. Okay, it is used almost in the negative sense. negative sense में ही use करते हैं. For example, there was little hope for the patient. मतलब hope अभी भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत. And the next one, a little, at least some. Okay, मतलब कुछ तो. Okay, so though not much, a little knowledge is a dangerous thing. Next one, the little, the whale quantity, though very little, मतलब है पर whale quantity form में. Okay, पर little form में है वो. The little rice that the shopkeeper showed me was of an inferior quality. Okay, next one is नेक्स्ट इज फ्यू, नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नन, मतलब कि ना ज्यादा और बिल्कुल ही नहीं. ओके, लाइक देयर आर फ्यू टेकर्स फॉर द न्यू कार, इसका मतलब कोई भी नहीं. ओके, नेक्स्ट वन इज अ फ्यू, सम एटलीस्ट, मतलब कुछ, ठीक है, दो नॉट मेनी. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. ओके, कुछ स्टूडेंट मतलब. नेक्स्ट वन, द फ्यू, ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू. ओके, ऑल ऑफ देम पर तब भी कम. ओके, जैसे कि द फ्यू स्पेक्टेटर्स हु कम टू सी द मैच वर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज बैटिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज लेस एंड लीस्ट आर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म है किसका? लिटिल का. क्या चीज? लेस और लीस्ट. ओके, now the next thing is interrogative, what, which, whose, etc. Determiners that help to ask questions may be described as interrogative. उसे हम interrogative form में describe करते हैं, जैसे कि what, which, whose, how much and how many are interrogatives. They can be used before the kind of noun. ये kind of noun के आगे भी हम use करते हैं, जैसे कि what train, what books, which milk. Okay, तो ये थे आपके वेरियस टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.